So good evening to everyone. So today we are again trying to discuss the complete question paper of complete NEET 2020 total syllabus from the first chapter to the last chapter. First read the question paper and try to see that which questions you can attempt first. And make sure that your first attempt, those questions, those chapters which you are very perfect, then you try to go for the remaining. Okay. So let us first try to read the question paper and see what is the level of the questions and what are the topics we can do from this one. See, I'm doing only the questions of your modern physics, heat and thermodynamics, gravitation, units and dimensions, and to some extent of your sound waves, particulation. So remaining questions, you can do it out. I'm having a time constraint. I need to do the paper in 40 minutes itself. So let me first read the question paper for you. So the first one is the velocity acquired by a body. That means this is from your kinematics. I'm writing it this one as of your K. Sure. So first one is from your kinematics beta. The natural frequency, this is your AC ka question hai. Then question number 2, dependence. This is also your AC question. AC mein se two questions are is mock test mein. Then this one is your again kinematics, river and boat problem. Centripetal force, this is from your circular motion. Please try to mute yourself better. Chalo. Question number 5, 6. Okay, question number 6 is from vectors. I think we can do the vectors question. Then question number 7 is your gravitation. This also we can do. We not. And question number 8 is also gravitation. So this also we can do. So this is from your gravitation chapter. Then this one is from work over energy. This is from your fluid mechanics. If you might have been remembered, you can do it out. Then this is from your semiconductors and devices. And water rises to height. This is a capillarity, that is surface tension formula. And this is again from your heat. This heat question we can do. Then question number 14. 14 is from your wave optics. Wave optics question also we can do. Then uniform disk. Again, this one is from your heat. Heat chapter question also we can do. Question number 17. This is heat engine question. This also we can do. Then force of 10 Newton is applied horizontally. This is your friction. Then question number 18. This is again your units and dimension that you can do. The ball is being thrown up with a speed 16 distance travel in the 7th second. Again, this is a kinematics question that we'll do later. Question number 20 is again your modern physics question. This also we can do. This is your sound wave question. This also we can do. Frequency beats question. A block is being placed on a ship which undergoes a vertical harmonic oscillator of angular frequency. This is your SHM question. SHM question also we can try to do. Question number 29 is your nuclear physics. Nuclear physics question bhi apan kar sakte hain. 24 is your electrostatics. 25 is your magnetic field, I think so. Charge about the kinetic energy when it reaches the rings. No, it is your electrostatics question. Question number 26 is your kinematics. Question number 27 is electrostatics. Question number 28 is again your heat, because tap supplies the water. 27% takes 1 kg of water per minute. The power of the geyser that we can do. Question number 29 is again current electricity. Question number, this one is your optics. This is your optics question. And this one is also your optics question. Formula based भी होते हैं, ज़्यादा optics का नहीं होते basically. Question number 32 is also optics. जो करेंगे लेकिन last में करेंगे बेटा. Question number 33 is again wave optics. Wave optics में से 2 question पूछ लिया अब तक. Question number 34 is also wave optics, that is resolving power का question है. Question number 35 is also from wave optics, part deflection. Then question number 36 देख लीजिए बेटा. 36 is from your optics. This is your electromagnetic waves. नहीं, sorry. This one is also again from wave optics. पता नहीं wave optics से बहुत ज़्यादा ही डाल दिया है. ये modern physics के question से. This is your atomic physics. ये कर सकते हैं अपन. Question number 39 है charge particle. ये हो गया magnetism का.
एंड दिस वन इज अगेन योर एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी अपन कर सकते हैं, लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है. दिस इज अगेन काइनेमेटिक्स क्वेश्चन, ग्राउंड, दिस इज आल्सो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन. Question number 43 is again what you call that one, fluid mechanics. Then question number 4 is your heat transfer question. This also we can do. This is your heat transfer ka question hai. We can do. And the length of sonometer wire. Question number 5 is from your sound chapter. So sound chapter ka bhi question apan kar sakte hain. Question number, this one is from your SHM. Question number SHM ka bhi kar sakte hain. This is from your semiconductor and devices. क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट नाउ फॉर मी, ओके, एटॉमिक फिजिक्स से है, ये हो गया अपना एटम्स, तो एटम्स का भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ये आज ही मैंने किया हुआ है, तो आई थिंक वी कैन ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50 इज योर ईएमआई का क्वेश्चन है, वो अपन छोड़ रहे हैं, वो बाद में देख लेंगे. चलो अब पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी. सी दैट हाउ फास्ट यू कैन डू अलोंग विद मी, और फॉर्मूले नजदीकी याद आ रहे नहीं आ रहे वो इंपॉर्टेंट है अपने को, सो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर लीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 से तो नहीं कर रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली. जल्दी से बताइए 6 का क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकता है क्या? पढ़ लीजिए, 2 मिनट में हो जाता है बेसिकली. रफ पेपर बाजू रख के करिए बेटा. एनीवन? If A bar is equals to 4i cap minus 2j cap plus 6k cap and B is equals to minus 2j cap minus 6k cap, यानी यहाँ पर I नहीं दिया, खाली J and K में दिया, then angle made by the vector A bar plus A bar with your B bar will be equal to your how much? देख लीजिए जल्दी से. Anyone? R bar plus of A bar, resultant पूछ रहा है बेसिकली. R bar plus of your A bar, पहले A plus B को ऐड कर लीजिए. इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है देख लीजिए जल्दी से. What I am getting right now, A plus B देख लीजिए कितना आ रहा. R bar is equals to your A bar plus of your B bar. A bar की वैल्यू है, this is your 4i, isn't it? तो यहाँ पर बचेगा 4i as it is. उसके बाद यहाँ पर J है, K है, तो K कैंसिल हो गया है, -2J है और ये माइनस है, तो ये बन जाएगा मेरे पास -4J. ये हो गया रिजल्टेंट. यानी अगर मैं वेक्टर में ड्रॉ करूं, 4i कैप इस डायरेक्शन में है बेटा और 4j कैप इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पर कहीं पर इस तरह से. दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. ये हो गया थीटा. तो tan थीटा की वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा? tan थीटा इज इक्वल्स टू योर y बाई योर x लिखोगे. y के कंपोनेंट में क्या है? 4 है, सो y के कंपोनेंट में 4 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू बन गई 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1, यानी थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज आना चाहिए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो पूछा क्या प्रॉब्लम में? विद पॉजिटिव वाई एक्सिस पूछा है. ओके, पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ये हो गया 45 और पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ऊपर, तो ऊपर हो गया ये 90. तो 90 प्लस 45, बच्चे जल्दबाजी में 45 रख देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 90 प्लस 45 आना चाहिए आपको आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 135 डिग्री. सो सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर. ओके, वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. Kinetic energy of a body of mass m at a height h is equals to r by 2 from the earth. When the body is thrown from a surface with a speed v naught is equals to under root of gr, the kinetic energy will be equal to how much? आगे किसी को देख लीजिए. Kinetic energy of the body of mass m at a height h by 2 from the surface of the earth. When the body is thrown from the surface with a speed of v naught is equals to under root of 2g, under root of gr will be equal to how much? यानी पूछ रहा क्या है यहाँ पर? kinetic energy at a height of your h by 2. तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए. टोटल इनिशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. व्हेन इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? हाफ इनटू m इनटू योर v स्क्वायर, isn't it? So half into m into your v naught square दे रखा है, तो ये हो गया half into m into, this will become for me g into r, यानी this will become for me plus this is mg into your r divided by 2. This will be kinetic energy. So that will be equal to your potential energy at what height is asking? r by 2. यानी r की जगह आप क्या डालोगे? rg into a certain height, मतलब this will become for me
माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। एच की वैल्यू कितनी है? आर बाई टू। 1 + 1/2 इज नथिंग बट राइट नाउ फॉर मी 3/2, तो ऊपर चले जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस ऑफ योर 2/3 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस K2 निकालो, आराम से आ जाता है। वो छोटा क्वेश्चन ही है लेकिन अच्छा वाला क्वेश्चन। गुड, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस। ऑल द कैपिटल जी कैपिटल एम एक जगह ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, आराम से आ जाता। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is always correct about a planet revolving around the sun? Isn't it? First one, potential energy of a planet is constant, linear momentum of a planet is constant, orbit of a planet must be circular, aerial velocity of the planet is your constant part of relation. देखो बेटा, each planet with respect to sun traces equal areas and equal intervals of a time, तो उसकी aerial velocity कभी भी constant रहना चाहिए as per the Kepler's second law. So aerial velocity of each planet will remain always constant at every time, यानी fourth option, direct question. Then उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बेटा, कोई कर सकता है क्या? देख लीजिए। An iron rod and copper rod lies side by side as the temperature is been side, यानी एक हो गया आयरन रॉड और एक हो गया कॉपर रॉड। Side by side, the temperature is changed, the difference in the length of the rod remains constant, यानी ये शॉर्टकट फॉर्मूला अपने को मालूम है। डिफरेंस अगर इन द लेंथ अगर अपने को कांस्टेंट रहेगा, then alpha 1 L1 will be equal to alpha 2 L2, ये पॉइंट अपने को याद आना चाहिए। डिफरेंस इन द लेंथ अगर रिमेन्स कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ 40 सेंटीमीटर, the ratio of original length of copper to the iron is, alpha of copper दे रखा है और alpha of your iron दे रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्टली अगर ये पॉइंट अगर आप लोग को शॉर्टकट फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस लगेगा इस प्रॉब्लम को करने के लिए। सो यहाँ पर अपने को पूछ रहा है क्या? लेंथ ऑफ योर कॉपर डिवाइडेड बाय योर लेंथ ऑफ योर आयरन, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ योर आयरन डिवाइडेड बाय अल्फा ऑफ कॉपर। तो वन वर्ड में आंसर आ जाएगा मेरे को। इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है? 1.2 into 10 to the power of -5 डिवाइडेड बाय 4.8 into 10 to the power of -5। ये वाला चले गया। दिस इज योर 1.22 डिवाइडेड बाय 4.8, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 1/4। 1/4 विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, अपने को आना चाहिए, शॉर्टकट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो फिर से एक बार याद रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम कभी आया तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहना। अगर दोनों साइड बाय साइड में है और उनके डिफरेंसेस अगर सेम है तो L1 अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल टू योर L2 इनटू योर अल्फा 2। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4, an unpolarized beam of light is incident over a polarizer and then its beam of light passes through another polarizer. The transmission axis of both the polarizers are 45 degrees with respect to each other. Then final intensity of emergent light becomes is equals to how much? We know the Malus law लगेगा यहाँ पर, I is equals to your I naught into cos square theta, फॉर्मूला याद है। So I1 कितनी होती है बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट में से जब ये एनालाइजर से पास करेगा, ये एक एनालाइजर है और सॉरी ये एक पोलराइजर है और ये एक पोलराइजर है। यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट जा रही है इस तरह से, एरो मार्क और डॉट रहेगा, इसका इंटेंसिटी I नॉट। जब यहाँ पर आएगा इसका इंटेंसिटी बन जाएगा I नॉट बाई 2, isn't it? इसका इंटेंसिटी विल बिकम फॉर मी I नॉट बाई 2। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में एंगल इज गिवन एज ऑफ योर 45 डिग्रीज, then the resultant which is been coming out will be equal to your I naught divided by 2 into your cos of your 45 degrees, cos square 45, यानी ये बन गया मेरे पास I naught by 2 into 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा सीधा सीधा I naught divided by 4। So intensity becomes 1/4 times, यानी फोर्थ ऑप्शन। छोटा क्वेश्चन है, आराम से करना चाहिए था। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, can anyone give me the answer for question number 15 बेटा? डायरेक्ट प्रॉब्लम है ये। A uniform disk has been rotating about a geometrical axis in the free space. If the temperature is been increased by delta T on heating, the fractional change in the angular velocity is how much for me? Moment of inertia का concept लगा के करना है। Moment of inertia for the disk is equal to how much for me? m r square by your 2। याद है आप लोग को फॉर्मूला? माइनस ऑफ योर 2 अल्फा इंटू योर डेल्टा टी आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से कर रहे थे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2। ये आप लोग एक बार ट्राई कर लो, ये डायरेक्ट सॉल्व एग्जांपल्स में भी सॉल्व एग्जांपल में रखा हुआ है, यू कैन ट्राई टू डू इट आउट ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, source and sink temperature of a Carnot engine are 327 and 27, efficiency of engine will be equal to how much? फॉर्मूला बताएगा कोई? efficiency neta is equals to 1 minus T2 divided by T1।
T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 इज इक्वल्स टू 327 प्लस 273 कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 300 केल्विन, and T2 will be equal to your 273 plus of your 27, that will be equal to 300 Kelvin. तो यहाँ पर से आ जाएगा मेरे को 1 माइनस T2 की वैल्यू 300 है डिवाइडेड बाय 600, ये 0 0 चले गया, 3 1 जा 3 2 जा, दैट इज 1 माइनस 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 यानी 0.5. 0.5 मतलब कितना परसेंट होगा बेटा, 50% हो जाएगा, सो दैट विल बी योर 50%. ठीक है ना, चलो टाइम पे करना इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने को आना बाद में कर लेना वो अलग बात है, लेकिन कंपलसरी उस टाइम पे करना, एग्जामिनेशन हॉल में करना, याद आना, फॉर्मूले करने का कॉन्फिडेंस आना, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से. यूनिट्स एंड डायमेंशन का है. इन द फॉर्मूला f is equals to a into exponential to the power of minus hc by hc by your x, where h is a Planck's constant, c is the speed of light. The dimension formula for x will be equal to how much? I told you exponential of anything will always be a dimensionless, यानी hc by x will be equal to how much for me beta? Dimensionless quantity. It will be your dimensionless quantity. Is it clear for me? यानी hc divided by x will be equal to your m0 l0 t0, dimensionless हो जाएगा, यानी h into c will be equal to your x, isn't it? h is nothing but what beta? Planck's constant. Planck's constant कहाँ से निकालोगे? E is equals to h into nu से निकालोगे, फ्रीक्वेंसी से. ये h की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? E by your nu, that is nothing but of your E divided by 1 by nu is nothing but capital T. एनर्जी का डायमेंशन होता है ml square t power minus 2 into your t. तो डायमेंशन ऑफ यूर प्लैंक्स कांस्टेंट कितना बन गया, m into l square t power minus 1 into स्पीड मतलब वेलोसिटी l t power minus 1 आ जाएगा. तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, m में तो सिर्फ m ही एक ही है, l में देखो यहाँ पर l है, यहाँ पर l स्क्वायर है, यानी l क्यूब कहाँ पर आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आ गया आंसर इसका. बाकी का करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये l पावर ऑफ योर -2 t पावर ऑफ योर -2 बन जाएगा. ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इजी वाला भी था. क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए बेटा. कैन एनीवन ट्राई टू डू द क्वेश्चन नंबर 20 बेटा. If de Broglie wavelength for a proton and alpha particle are equal, okay, de Broglie wavelength of your proton is equals to de Broglie wavelength of alpha particle. Alpha particle मतलब helium. The ratio of their velocities will be equal to how much? De Broglie wavelength का formula h divided by m mass of your proton, velocity of proton is equals to your h divided by mass of alpha particle and velocity of alpha particle h, और h तो चले गया सीधा सीधा. तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, यानी वेलोसिटी ऑफ योर फर्स्ट वन क्या है बेटा, प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ योर अल्फा पार्टिकल, दैट विल बी इक्वल टू योर मास ऑफ योर अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय योर मास ऑफ योर प्रोटॉन. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब क्या बेटा, हीलियम ना, हीलियम का मास कितना होता है 4m, मास ऑफ प्रोटॉन होता है mm गेट्स कैंसिल, तो 4:1 आ गया, तो ऑप्शन बन गया सेकंड वन. क्लियर है सभी को? वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक्स ए एंड बी आर, यानी मेरे पास एक ट्यूनिंग फोक ए है और एक ट्यूनिंग फोक बी है, ये है और ये बी है, which tuning fork A and B are respectively 5% more and 4% less than the frequency of tuning fork C. मान के चलो एक tuning fork C से ये 5% more है और ये 4% less है, ये more है और ये less है with compared to your C part definition. ठीक है ना, is it clear? चलिए, when A and B are sounded और A and B are simultaneously exact, यानी दोनों को किया तो 9 beats per second are introduced, then the frequency of the tuning fork of your B will be equal to your how much? देखो frequency of your C अगर मैं मान के चल रहा हूँ n, तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने को मालूम है, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बी. प्रॉब्लम में क्या दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ए इज इक्वल्स टू योर 5% मोर ऑफ सी, यानी सी की फ्रीक्वेंसी ऑफ सी का क्या है बेटा, एन है, प्लस 5% मोर मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स ऑफ योर एन, तो ये बन जाएगा मेरे को 21 बाय योर 20 टाइम्स ऑफ योर एन फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ए. उसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या है 4% लेस है विद सी, यानी n माइनस 4% लेस, यानी 4/100 टाइम्स ऑफ योर एन, तो ये बन जाएगा मुझे 24 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स ऑफ योर एन, isn't it? और इसने प्रॉब्लम में दे रखा है बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखा है 9, तो ये हो गया 9, Na की वैल्यू कितनी है 21 डिवाइडेड बाय 20 into your n माइनस दिस विल बी योर 24 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स ऑफ योर n.
तो इसमें से n कॉमन हो गया, 9 इज इक्वल्स टू n कॉमन हो गया, 21/20 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25 बनेगा, सीधा सीधा। चलो करके बता लो कितना आ रहा है, बेसिकली किसी को आ रहा है क्या, देख लो कैलकुलेशन पार्ट। इसको एलसीएम कर लेते हैं, 9 इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास n इंटू इसका एलसीएम बनेगा मेरे को 100, दिस विल बी 105 माइनस 96, 105 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ रहा है देखिए, इसमें से n निकाल सकता हूँ ना बेटा। हाँ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 चले गया, तो n की वैल्यू आ गई 100। तो अगर n की वैल्यू 100 है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ पूछा क्या, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ b, फ्रीक्वेंसी ऑफ b मतलब कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर b इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स ऑफ n, यानी दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 25 इनटू n की वैल्यू कितनी आ गई 100, इजंट इट। तो कितना आ जाएगा ये 96 हर्ट्ज, ट्राई कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन, हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, मैं शॉर्टकट भी पढ़ाया था मैंने क्लास में। A block is being placed in a ship, question number 22 देखिए बेटे, block is being placed in a ship which undergoes a vertical harmonic oscillation of angular frequency omega. The amplitude of oscillation gradually increases. The block will leave the contact with the ship surface for the first time. So देखिए बेटा, कभी भी अगर ये लीव कर रहा है मतलब contact must be equal to your zero। ये देखिए, अगर ये एक शिप है, मान के चलिए इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, और ये मूव कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सर्टेन एक्सेलरेशन, और यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है, मान के चलो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका ये। At highest point of the ship, when the motion is in the downward beta, acceleration is along what way? मीन पोजीशन पे पास रहेगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन एसएचएम क्या लिखोगे, ये इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ये, इजंट, और फोर्स भी नीचे ही है ना बेटा, m इनटू और ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और m इनटू g, इजंट इट। यानी अगर m और m मैं कैंसिल कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द g। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर इनटू ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g, यानी दिस एम्पलीट्यूड मस्ट बी ग्रेटर देन g by your omega square. So the block will leave its contact at the minimum of amplitude, how much beta, g by omega square at the highest position of the ship. So obviously for an amplitude of g by omega square at the topmost position, it will leave the contact. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। A nucleus of ये पास है न्यूक्लियस x 84 to 10 ओरिजिनली एट रेस्ट, यानी इनिशियल मोमेंटम 0, एमिट्स अल्फा पार्टिकल। अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है यानी यहाँ पर आ गया 2He4 एंड इट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और इसके साथ यहाँ पर 84 माइनस 2 मतलब ये हो गया 82, सम एलिमेंट बन गया y, दिस इज 210 माइनस ऑफ योर 4, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 206। So by conservation of linear momentum, initial momentum must be equal to final momentum, or we know that it is mass of alpha particle, velocity of alpha particle is equals to your mass of your daughter nucleus, velocity of daughter nucleus। Recalling speed of daughter nucleus पूछ रहा है, तो vd opposite direction में जाएंगे तो magnitude ले रहा हूँ, so that will be getting cancelled। So velocity of this one I am taking in terms of your magnitude beta, this is vd is equals to your mass of alpha particle, velocity of alpha particle by mass of your daughter nucleus। Mass of alpha particle is 4, velocity of alpha particle is v, mass of daughter nucleus is 210 minus mass of daughter nucleus कितना आया बेटा, 210 minus 210 is 26, यानी 4v divided by 206 will be the answer, first option। क्लियर है, चलिए देन अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 का देख लीजिए बेटा, किसी को आ रहा है क्या। A tap supplies the water at 22 degrees centigrade. A person takes 1 kg of water per minute at 42 degrees centigrade from geyser. The power of the geyser will be equal to how much? यहाँ पर it is been converting into the heat ना, तो heat का फॉर्मूला क्या है बेटा, Q is equals to your ms into your delta theta। Power is equals to what I can write, power is equals to energy divided by T, यानी Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं power into time लिख सकता हूँ, power into time is equals to your ms into delta T। P is your power of your geyser, so P will be equal to your ms into delta T divided by your T। बस हो गई बात। मास कितना दे रखा है बेटा, 1 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू हाउ मच वर्मी, परसेंटेज 1 का कुछ भी नहीं दिया ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी 4200 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 42 में से आप 22 निकाल लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस, डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम के लिए पूछा हुआ है बेसिकली
per minute, यानी divided by 60. So this will be 4200 into 42 minus of your 22 divided by your 60. कितना आ रहा देख लीजिए बेटा. कोई आंसर दे रहा है? Option 4. Very good. Option 4 is the answer. Okay. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? This is a 20 divided by your 60. यहाँ वाला ये वाला चलेगा. This will be 1400 watt. ठीक है? Very good. डायरेक्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 30 कोई कर सकता है क्या? देखिए. A point object when viewed from the two opposite face on a plain glass slab appears a distance of 9 cm and 5 cm respectively from the surface. Thickness of the glass slab. मैं इसका क्लास में शॉर्टकट भी बताया था. याद है कि नहीं रहा है तो प्लीज ट्राई टू रिफर माय नोट्स एंड ट्राई टू डू इट एंड टेल मी द आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन है. मैंने क्लास में बहुत क्लियरली इसका शॉर्टकट भी लिखाया था. 2-3 प्रॉब्लम्स भी करवाया था. वो आप लोग अपनी तरफ से कर लीजिए. ओके. टॉपिक से क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे. देन वी विल ट्राई टू कम टू द क्वेश्चन नंबर 33. 33 देखिए बेटा. If a bichromatic light is used in YDSC having the wavelength lambda1 lambda2, then minimum order of maxima for lambda1 which overlap. जब overlap होते हैं तो मैंने क्या बोला fringe width के लिए n1 beta 1 will be equal to your n2 beta 2. Overlapping हो रहे तो I can write here fringe width of 1 divided by fringe width of 2 will be equal to your n2 divided by n1. फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला आप लोग को मालूम है. बीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच बेटा? लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. तो बीटा 1 की फॉर्मूला लैम्डा 1 इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू और n2 डिवाइडेड बाय n1. कैपिटल डी चले गया. स्मॉल डी भी चले गया. तो मेरे पास आया लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1. तो अपने को निकालना क्या है? देखो यहाँ पर बाइक्रोमेटिक लाइट में वेवलेंथ लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा 2 दे रखा है. देन मिनिमम ऑर्डर ऑफ योर मैक्सिमा विल बी इक्वल टू हाउ मच? यानी n1 by n2 की वैल्यू निकाल लीजिए. लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? लैम्डा 1 की वैल्यू है मेरे पास 700. तो यार लिख रहा हूँ मैं 700 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1. ये वाला चले गया. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n1 मतलब 5. दैट विल बी द आंसर. सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस. 7/5 आ रहा है तो मिनिमम ऑर्डर 5. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. The ratio of resolving power of an optical microscope of the two wavelengths 600 nanometer and 4 meter. Resolving power जो है inversely proportional to wavelength होगा, isn't it? यानी resolving power of 1 divided by resolving power of 2 will be equal to lambda 2 divided by lambda 1. कितना आसान क्वेश्चन है. देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पे से 450 divided by your 600. ये वाला चले गया. It is 45 divided by 60. यानी ये हो गया 3/4. First option will be the answer. Very good. चलो. In case of polarization, if I is the angle of incidence and theta p is the polarizing angle, ये तो आप लोग को सबको मालूम ही होना चाहिए. पोलराइजिंग के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रे ऑफ लाइट इज बीन इंसिडेंट. ये हो गया रिफ्लेक्शन. ये हो गया सम पोलराइजिंग एंगल आईपी. दिस इज आल्सो योर आईपी. ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्रीज होनी चाहिए. सो फॉर द प्रीवियस टेस्ट एंगल लगा रहा हूं मैं. म्यू इज इक्वल्स टू tan ऑफ योर आईपी. अगर फॉर्मूला आप लोग को याद है, दिस इज अ पोलराइजिंग एंगल. द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस आर राइट नाउ व्हिच इज बीइंग फुल्ली पोलराइज्ड बेटा. रिफ्लेक्टेड रे जो है ना फुल्ली पोलराइज्ड होती है. डॉट में होते हैं या ओनली. ये जो रिफ्रैक्टेड होते हैं डॉट भी होते हैं, ऐसा एरो मार्क भी होते हैं. तो ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है. रिफ्लेक्टेड फुल्ली पोलराइज्ड होती है. ठीक है ना. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्रीज होनी चाहिए. तो I must be equal to P. Refracted ray and reflected rays are perpendicular. Second option भी correct है. For IP, reflected ray is fully polarized. That is also correct. यानी fourth option will be the best answer for that one. Reflected ray fully polarized होती है बेटा. Refracted ray is partially polarized होती है. याद रख लीजिए. ठीक है. Question number 36 देखिए. The focal length of an objective and an eyepiece lenses of a telescope are respectively 200 centimeter and 5 centimeter. Maximum magnifying power of the telescope will be equal to how much? Telescope का magnifying power ये formula based है, अपने को याद होना चाहिए. Focal length of objective divided by focal length of your eyepiece into 1 plus FE divided by least distance of distinction. क्या क्या दे रखा है देखिए प्रॉब्लम में. eyepiece की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्टिव दे रखा है 200 सेंटीमीटर और कैपिटल डी दे रखा है 25 सेंटीमीटर. आई होप यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई. विल गेट द आंसर फॉर दिस वन. 48 आना चाहिए. सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ.
क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए बेटा. Plane microwaves are incident along a long slit having a width of 5 cm. The wavelength of the microwave if the first order diffraction minima. Diffraction minima के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? N into your lambda will be equal to your A into your sin theta. Very important relation. Okay. For the first minima पूछ रहा है यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यानी lambda is equals to A into sin theta. यानी लैम्बडा इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी दे रखा है विड्थ 5 सेंटीमीटर यानी 5 into 10 to the power of -2 into your sin of your 30 degrees. तो पहले सेंटीमीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेता हूँ. सो इसको सिंपलीफाई कर लीजिए. sin 30 is 1/2 यानी ये हो जाएगा मेरे पास 5/2. 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर्स में ही दे रखा है तो नो प्रॉब्लम. सो वेवलेंथ आ गया 2.5 सेंटीमीटर्स. वेरी गुड. Question number 38. Monochromatic light of frequency f1 is been incident on a photocell and stopping potential is found to be V1. What is the new stopping potential of this cell if it is irradiated by a monochromatic light of frequency f2? कोई बताएगा इसका आंसर? I'm giving a minute of your time. आप लोग करके बताइए कोई ना कोई. Question number 38 के लिए आंसर. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेटा. इंस्टेंट फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बताइए बेटा. E into your V will be equal to your frequency H into F minus work function. Actual formula क्या होता है? E is equals to your work function place of your kinetic energy. Kinetic energy जब maximum होती है ना इसको हम लोग E into V naught लिखते हैं. तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है बेसिकली में. ठीक है ना. तो ये मैं करता हूँ दोनों के लिए लिख लेता हूँ क्योंकि दो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स दे रखा है. दिस इज योर E into your V1 is equals to your H into frequency F1 और ये हो गया वर्क फंक्शन W0. उसी तरह से ये हो गया E into your V2 is equals to H into your F2 minus of your work function. तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. E into V2 is equals to H into your F2 minus इसमें से अगर मैं वर्क फंक्शन निकाल रहा हूँ I can substitute that value here H into your F1 minus of E into your V1. मुझे वैल्यू ऑफ V2 निकालनी है. सो V2 विल बी इक्वल टू योर H डिवाइडेड बाय ये E इधर आ जाएगा इनटू योर F2 माइनस ऑफ योर F1. H मैंने कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा प्लस ऑफ योर V1. ठीक है ना. E टाइम्स ऑफ V1. सो कौन सा ऑप्शन हो रहा है देख लीजिए बेटा. F2 माइनस F1 F2 माइनस F1 F2 माइनस F1 194 में है. ये नहीं होगा ये नहीं होगा. प्लस V1 है तो फर्स्ट ऑप्शन. वेरी गुड. 39 अपन नहीं कर रहे. क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए बेटा. 40 का फॉर्मूला याद रहे तो ही कर सकते हैं. मैंने बहुत डिटेल में भी करवाया था ये. लाइट रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्लक्स किसको बोलते हैं बेटा? वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी पावर डिवाइडेड बाय एरिया इज योर एनर्जी फ्लक्स. इंसिडेंट ऑन ए वेल पॉलिश्ड डिस्क ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 1 आवर टाइम भी दे रखा है. द मोमेंटम ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? वेल पॉलिश्ड मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P is equals to 2 times of your I into your A divided by C into your time. That is nothing but delta T. Isn't it? कितने टाइम के लिए पूछ रहा हूँ वहां पर? 1 आवर के लिए पूछ रहा है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है. That is equals to 2 into this one is nothing but power by area. क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी होता है ना बेटा. इंटेंसिटी is equals to power by area. यानी इनडायरेक्टली ये इंटेंसिटी है. That is 2 times of intensity is 24 into your ये हो गया एरिया. एरिया कितना दे रखा है? 20 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power of your 8. कन्वर्ट कर लो सभी चीज को क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है. 3 into 10 to the power of 8 into ये बन जाएगा मेरे को 3600 1 आवर के लिए. isn't it? So simplify it, you will get the answer for that. I'm leaving the calculation part for you. You please try to take care of your calculation. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन नहीं है. नेक्स्ट वन नहीं है. नेक्स्ट वन नहीं है. 44. 4 identical rods of metal are being connected as shown in the figure. ये हम को मालूम है बेटा. रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है. होप यू रिमेंबर द फॉर्मूलास फॉर दिस वन. आप लोग कर सकते हो इसको. 4 identical rods of metal are being connected as shown in figure. Assuming no heat loss due to radiation from side walls, the junction temperature will be equal to your how much? यहाँ 20 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर यानी हाइयर टेम्परेचर यहाँ. तो ये यहाँ से जाएगा इस तरह से, फिर यहाँ जाके ऐसे डिवाइड होगा, फिर इसमें से डिवाइड होगा यहाँ पर, फिर ये इसमें से ऊपर जाएगा. ठीक है ना. जंक्शन टेम्परेचर मतलब ये हो जाएगा मेरे पास थीटा. ये 30 है, यहाँ पर जाएगा 10, यहाँ पर ऊपर जाएगा. कुछ आरोमा तो नहीं दिया ना, बट देयर इज नो लॉस ऑफ योर हीट. इनकमिंग मस्ट बी इक्वल टू योर आउटगोइंग. यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है.
कर लोगे 125 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी गुड, 25 विल बी द आंसर। ठीक है, ये 30 है ना, बट ये भी हाइयर टेम्परेचर होगा। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसा अंदर से ले रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर अंदर ले रहा हूँ, तो इसकी हीट T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। यानी आई कैन से हियर हीट फ्रॉम योर Q1 प्लस ऑफ योर Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दे, अपन को फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल्स टू योर L डिवाइडेड बाई K इंटू योर A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। याद है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू L बाई योर K इंटू योर A। सो अगर मैं DH बाई DT में लिख रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर देख लीजिए, यहाँ पर हो गया T1 माइनस ऑफ ये T, कॉमन टेम्परेचर में T ले रहा हूँ, सो डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस हो गया R, प्लस उसके बाद आ जाएगा T2 माइनस T डिवाइडेड बाई R इज इक्वल्स टू उसके बाद T माइनस ऑफ T4 डिवाइडेड बाई R प्लस उसके बाद T माइनस ऑफ T3 डिवाइडेड बाई R। डायरेक्ट फॉर्मूला, T1 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस T डिवाइडेड बाई योर R प्लस ऑफ योर 40 माइनस T डिवाइडेड बाई योर R, सेम डिस्टेंस है ना, तो इट इज T माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई R प्लस T माइनस 10 डिवाइडेड बाई योर R। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये R कट गया, 30 minus of your T plus 40 minus of your T will be equal to your T minus 20 plus T minus 10। तो पूरे T टर्म्स की जगह ले लीजिए, 30 plus 40 plus 20 plus 10 is equals to 1 2 3 4, ये हो गया 40। तो कितना बन जाएगा, T is equals to 30 40 80 90 100, this is 100 divided by 425, 45 will be the answer। वेरी गुड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कोई कर सकता है क्या, देखो जल्दी से। The length of the sonometer wire is 0.75 meter and its material density is 9 into 10 to the power of 3 kg per meter cube. It can bear a maximum stress of 8.1 into 10 to the power of 8 without exceeding the elastic limit. Fundamental frequency that can be produced in the wire will be equal to how much? Fundamental frequency का formula होता है N is equals to 1 by 2L under root of your T by your mu. Mu is your linear mass density, so mu is equals to, I can write for mu what beta, mu is equals to your mass per your length. Mass is equals to volume into your density divided by L. Volume will be equal to area, area is pi r square into your rho into your this one is right now your L. Mass is equals to volume into density, mass is equals to volume into density, volume is equals to your area into its length, area into its length, AL चले गया, isn't it? So T is nothing but stress, stress will be equal to how much for me beta, force by area will be equal to how much for me, stress. So what will be the formula for me? N is equals to what will be the formula? याद है किसी को? 1 by 2L under root of your stress divided by rho। क्लास में भी लिखवाया था मैंने यहाँ पर। बाकी के सबके वैल्यूज दे रखा है प्रॉब्लम में, लेंथ दे रखा है आपको, isn't it? Everything is been given. Just simplify it. Right. Clear है? So कैलकुलेशन ये है, बाकी का सब कुछ दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा है, अपने को प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट सिंपलीफाई इट बेसिकली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 एसएचएम का है बेटा। 2 एसएचएम दे रखा है, y1 4 sin एंड y2 इज 4 sin और cos में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा। मैंने क्लास में करवाया था, ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन चले जाएगा, ये आप लोग बाद में कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए बेटा। 48 का तो डायरेक्टली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है। In a spectrum of hydrogen atom, the ratio of shortest wavelength in Lyman series to the longest wavelength of your Paschen series, and 1 by wavelength of longest will be equal to R into your 1 by 1 square, infinity हो जाएगा। और एक उसके बाद 1 by wavelength of your what is that one right now for me, Paschen के लिए कितना हो जाएगा, R into your 1 by your 3 square minus 1 by your 4 square, isn't it? यानी लैम्डा ऑफ L डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ T, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 16 minus 9 डिवाइडेड बाय योर 144, यानी दैट विल बी योर 7 by 140, दैट विल बी द आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और 49 देख लीजिए बेटा। A की वैल्यू दे रखी है 0 और B की वैल्यू दे रखी है 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी जा रहा है, तो B की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये नॉट आ जाएगा, तो